ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੈ ਤਿੰਡੇ ਮਾਪੀਆਂ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓਏ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੈ ਤਿੰਡੇ ਮਾਪੀਆਂ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓਏ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ 73 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੈ ਤਿੰਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪੇ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਓਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨੀ ਵਸਾਏ, ਤਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਸਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ बैठे, जिस आसन पर बैठे हाँ, पता नहीं कितने इस आसन पर बैठ के चले गए, ते मेरे बाद भी पता नहीं कितनिया ने इस आसन ऊपर बैठना है। कहते कि कोई अपनी थान नूं ये ना सोचे तू सदा ही इत्थे रहना है, कि जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कितने बह के संसार तो चले गए, पर पक्का किसी का ठिकाना नहीं। बाबा फरीद साहब जी ने पावन बाणी के अंदर रहमत की, आखन लगे 3.5 मण देहुरी चले पानी अन्न। बाबा फरीद साहब आखते ने ये शरीर रूपी देही 3.5 मण देहुरी है, जो पानी और अन्न के आसरे चलती है। ते मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन। बाबा फरीद साहब कहते हैं कि जो मलकल मौत आवसी भाव के मौत का फरिश्ता आएगा तो सारे दरवाजियां नूं भन देगा। वो किहड़े दरवाजे ने? वो शरीर के इंद्रियां के दरवाजे ने। जो मौत का फरिश्ता आएगा, ये शरीर रूपी घर दे विचों उस जिंद नूं इन्हां बाहर दियां खिड़कियां राही, बाहर दियां दरवाजियां राही, भावें वो अखां दे ने, भावें मुख दा है, भावें कन दा है, इन्हां 9 दरवाजियां नूं निर्बल करके कमजोर करके मौत दा फरिश्ता इस शरीर दे विचों जिंद नूं कढ के लै जाएगा। कि मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन, वेखो बंदा चलिया चोह जणियां दे कन। कहने की हकीकत है। फिर इस शरीर नूं 4 बंदियां ने अपने मोढे दे उपर के रख के तुर पैना है। जदों मौत दा फरिश्ता आएगा तो हकीकत है मनुख ने बड़े तरह के अपने तन नूं बचाने दे बड़े यतन कीते ने, पर वो मौत का फरिश्ता सारे दरवाजियां नूं भन के आएगा। किहड़े दरवाजे? मनुख आखदा है कि मेरे को बड़ी ताकत है, वो ताकत का दरवाजा भी तोड़ देगा। जे मनुख कहे कि मेरे को धन बहुत है, धन का दरवाजा भी तोड़ देगा। कहे कि मेरे को डॉक्टर बड़े ने, मेरे को वैद बड़े ने, मेरे को भरावां की बड़ी ताकत है, पर बाबा फरीद साहब आखते हैं कि भुलेखा ही है तेरे मन दे विच। वो मौत का फरिश्ता इन्हां सारे दरवाजियां नूं तोड़ के शरीर रूपी इस तन दे विचों जिंद नूं कढ के लै जाएगा। मनुख तेरी अपनी ताकत धरी दी धरी रह जाएगी। ताही बाबा फरीद साहब ने अज रहमत की, आखन के मौत एक ऐसी जीवन की सच्चाई है। ते साध संगत जी पिछले कई दिनों तो बाबा फरीद साहब जी दे सुचेत करते हैं इंसान नूं कि मौत दे बार बार दृष्टांत दे के बाबा फरीद साहब ने जीव नूं सुचेत किया है। वो आखते हैं कि जे हिरदे अंदर परमेश्वर दे नाम नूं वसाएगा तो एक नाम ही नाल निभण वाला है।
इसलिए गुरुदेव आखते ने कि साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। एक प्रभु के नाम नूं अपने जीवन का आसरा बना, जिहड़ा प्रभु का नाम लोक परलोक दे विच सहाई है। इस संसार अंदर भी, रब की कचहरी अंदर भी परमेश्वर का नाम ही नाल निभण वाला है। आसा की वार दे अंदर बाबा नानक आखते ने कि सेव कीती संतोखी, जिन्हें सचो सच ते आया। जिन्हां ने मालिक की सेवा की है, प्रभु का नाम जपिया है, फिर की करते ने, ओनी मंदा पैर न रखियो, कर सुकर धर्म कमाया। वो फिर मंदी थां दे पर पैर नहीं रखते, भाव के कुराहे वो जीव नहीं पैंदा। ओनी मंदा पैर न रखियो, कर सुकर धर्म कमाया। चंगी नाम की किरत कमाई करता है, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, दुनिया दे मोह दे माया दे इन्हां बंधनां नूं तोड़ के अन्न पानी थोड़ा खाया। जीवन नूं पालन लई थोड़ा अन्न छकदा है ते थोड़ा सौंदा है। ये नहीं कि पेट भरियो पशुआ जो सोयो, मानुख जन्म है हारियो। इसलिए गुरुदेव आखते ने कि अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शिशी अगला, नित देवे चढ़ा सवाया। किन्हां दे जिन्हां ने सच्चे नाम का अपने जीवन अंदर आसरा ले लिया है, जिन्हां ने मालिक दे नाम नूं जपिया है। ते कबीर साहब आखते ने कि हकीकत यह है कि नैनो देखत यह जग जाई। इन्हां अखां दे नाल देखदियां होइयां मैं जगत तुरदा होया देखिया है। जो मेरे तो पहला आए सन वो भी संसार तो चले गए, रुखसत हो गए। कबीर साहब आखते ने कि जिहड़े नाल दे सन वो भी तुर पे, ते कई मेरे तो बाद जो बड़े छोटे सन वो भी चले गए। सतगुरु महाराज कबीर साहब आखते ने कि नैनो देखत ये जग जाई, कि अखां दे नाल देखदियां होइयां इस जगत नूं तुरदियां होइयां देखिया है। जिन्हों फरीद साहब बाबा फरीद साहब आखते हैं कि फरीदा इन्नी लोयण देखदियां केती चल गई। इन्हां लोयण दे नाल अखां दे नाल देखदियां देखदियां कितनी दुनिया, कितनी खलकत संसार दे चों कूच करके चली गई। इन्नी लोयण देखदियां केती चल गई, लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। कहने मेरी हालत यह है कि मैं उस मौत नूं सामने देख के भी लोकां दे घर दे अंदर रोज जो दस्तक दे रही है, उन्होंने देख के भी मैं अपने दुनिया के कारजां नूं निपेजण दे अंदर, दुनिया के कारज नूं सवारन दे च लगा होया। ते हकीकत है साध संगत, कई बारी देखण नूं मिलदा है कि कमीशन ग्राउंड के उपर भी एक पासे शरीर नूं अगन दित्ती जा रही होंदी है, ते कुछ लोग उत्थे भी कारोबार दियां दुनिया दियां गल्लां करते रहते हैं। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि उत्थे जाके भी मौत का जो सुनेहा जीव नूं नहीं मिलिया। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कोलों पुछदे हां ते गुरुदेव पातशाह आखते हैं कि साधो रचना राम बनाई। इस संसार की रचना मेरे राम ने, परमेश्वर ने बनाई है। एक बिनस है, एक अस्थिर मन है। कहते कि एक अखां दे सामने बिनस रहे ने, संसार को जा रहे ने, उन्होंने देख के भी जी सुचेत नहीं होता, वो अपने आप को अस्थिर करके मन के बैठा हुआ है। साधो रचना राम बनाई, एक बिनस है, एक अस्थिर मन है। आचार्य लखियो ना जाए, कहने मैं हैरान हाँ ये दुनिया नूं देख के कि सामने अखां दे संसार जा रहा है, फिर भी अपने आप को असर करके मने हुए ने। जो बाबा फरीद साहब आखते ने कि फरीदा कित्थे तेंडे मापियां जिनी तू जने होए, तै पासों वो लद गए, तेरे कोलों वो चले गए ने। तू अजे ना पति ने होए, तेनों अजे भी यकीन है कि संसार तू भी नहीं रहना। इतिहास के विच सनातन धर्म के विच गाथा आंदी है, महात्मा बुद्ध जदों राजा सी, उन्हां दा नाम सी सिद्धार्थ। घोड़े के उपर, रथ के उपर सवार ने, ते रथ नूं चलाउण वाला रथवाही जिहड़ा है वो रथ चला रहा है।
सिद्धार्थ रथ के उपर सवार ने की देखते ने कुछ दूरी पर गए तो एक बजुर्ग मनुख सोटी का सहारा लैके तुर रहा है। महात्मा बुद्ध अपने सारथी नूं पुछदे ने, रथवाही नूं पुछदे ने, ये कौन है? ते रथवाही कहंदा राजन एक आम मनुख है, इसके जीवन दे च बुढ़ेपा आ गया है, बुढ़ेपे करके शरीर के अंग निर्बल हो चुके ने, आज शरीर अंदर इतनी ताकत नहीं, ये सोटी का सहारा लैके, डंडे का सहारा लैके तुर रहे हैं। महात्मा बुद्ध पूछते ने कि हर एक मनुख पर अवस्था आती है? कहने कि हाँ, ये बुढ़ेपा तो हर एक मनुख के उपर आता है। कुछ दूर होर लंघे तो एक सड़क के किनारे एक बीमार मनुख नूं मंजे के उपर पा के लैके जा रहे सन। पुराने समय अंदर जिन्हां मनुखों का इलाज नहीं सी होंदा, कई इलाज कह लो रोग ऐसे सन जिन्हां दा बेइलाज उन्हां दा कोई इलाज नहीं सी होंदा, ते सड़क के किनारे उन्होंने छोड़ के घर वाले चले जाते सन। इतिहास के जिक्र आंदा है गुरु नानक सच्चे पातशाह दीपालपुर जदों गए सन ते नरंगे नाम के कोड़ी के परिवार ने जियां ने ही अपने परिवार के बच्चे नूं जंगल ते छोड़ता, क्योंकि उसका इलाज ही कोई नहीं सी। ते ऐसा रोग जदों लग जाता सी, परिवार के जीव आप अपने परिवार के जीव नूं जाके जंगल छोड़ आते सन, क्योंकि इलाज कोई नहीं, उसदे नाल किसी होर नूं बीमारी ना लग जाए। गोविंदवाल की धरती पर प्रेमी नाम के कोढ़ी नूं कोढ़ दा रोग सी, उसके परिवार के जियां ने भी बाहर कर दिता सी। महात्मा बुद्ध देखते ने कि सड़क के किनारे मनुख पिया होया, कह लगे सारथी नूं ये कौन है? कह लगा राजन ये बीमार आदमी है, इनू रोग लग गया है, घर दियां ने इसनूं बाहर कर दिता है। कुछ होर अगे गए तो की देखते ने कि अर्थी जा रही है, शमशान घाट लैके जा रहे हैं, कहने ये की है? सारथी कह लगा ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। जिंदगी दे विच मनुख भावें जवानी के संसार तो रुखसत कर जाए, भावें बचपन ही चला जाए, हो सकता है इन्हें बुढ़ेपा ना आए, हो सकता है इन्हें बीमारी भी ना आए, चंगा तंदुरुस्ती संसार तो चला जाए, पर मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसने आना ही है। वो कह लगे रथ वापस मोड़ लियो। रथ वापस कर लिया ते महात्मा बुद्ध फिर परिवार को छोड़ के जसोदा और उनका पुत्र राहुल सी वो छोड़ के 12 साल तप वल तुर पे सन। वो देख के बैराग पैदा होया, पर सतगुर आखते ने कि हकीकत यह है कि साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन है। आचार्य लखियो ना जाए कहने हैरान होता, अखां दे सामने एक बिनस रहे ने, दूसरे अपने आप को अस्थिर करके मन्ने होने, असीं तो जाना ही नहीं, सच्चाई है। गुरुदेव पातशाह ने आख्या कि संसार दे विच रहिंदियां होइयां दुनिया के सुख भोग पर भोगदियां होइयां मालिक की बंदगी कर, प्रभु की सिफत सलाह कर, फिर हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त। संसार अंदर विचरदियां होइयां हसदियां खेड़दियां होइयां पहनदियां खावंदियां ही मुक्ति हो जाएगी। पर एक गल याद रखें, गुरुदेव आखदे कि खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, जे मौत भुल गई। दुनिया के पदार्थों के विच दुनिया के सुखों अंदर इतना गाफल हो गया, इतना खचित हो गया, तो गुरुदेव आखते हैं कि खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना, सदा संसार विच नहीं रहना। एक गाथा मैं आप नाल सांझी करा। एक साधु कोल एक नौजवान बच्चा आया करता सी ते उन्हें साधु नूं कहा कि साधु जी तुहानूं मैं कदे खुल के हसदियां नहीं देखिया, तुहाड़ियां अखां दे विच मैं कदे मलीनता नहीं देखी, ते तुहानूं मैं कदे किसी दा बुरा कहंदियां सुणदियां भी नहीं देखिया। हुण साधु दा समझाउण दा ढंग सी, कहण लगा तू मैनूं की कह रहे है, कल दा सवेरे दा सूरज तू नहीं देखना, कल का सूरज चढ़ेगा ना पहली किरण धरती पर पेगी, तेरी नसीब च नहीं है, तू संसार तो पहले ही चला जाएगा।
कहने लगा मैं तेन होर ही कुछ समझाना चाहता हाँ। कहने लगा बस होर कुछ की लोड़ नहीं। वो नौजवान बच्चा घर चला गया। घर दे च जाके माता पिता नूं कहन लगा कि साधु ने कहा कि कल का मैं दिन सवेर नहीं देखनी, बड़ा गमगीन है, अंदर उदास है। घर दे जी रोए भी, पर रात गुजरी, सवेर चढ़ी, सूरज भी चढ़िया तो साधु भी घर पहुंच गया। तो साधु नूं देख के कहन लगा कि साधु जी तुसीं कहा सी कि सवेर दी मैं सूरज का किरण नहीं देखनी, पर हकीकत यह है कि सूरज चढ़ चुके हैं, अजे मेरे शरीर के अंदर श्वास टिके हुए ने। वो कहन लगा मैनू एक गल दस, जदों दा तैनूं पता लगा है कि तू संसार तो चले जाना है, तू किसी नूं माड़े बोल बोले ने। कहन लगा मैनू अपनी मरण की चिंता पई है, मैं किसी नूं की माड़े बोल बोलांगा, किसी नूं पराए तन नूं भैड़ी दृष्टियां देखे है। कहन लगा रस्ते अंदर बड़े बंदे आए, पर मैं किसी वल नहीं देखे आ। मैनू तो अपनी मौत चेता है। तो कहने लगे जो मनुख नूं मौत याद रहे ना, फिर असल दे विच ओह प्रभु दे नाल सच्ची सिफ दे नाल जुड़िया रहिंदा है, जीवन अंदर विकार पैदा नहीं होंदे। ये हकीकत है। ते गुरुदेव आखदे कि खाना पीना हसना सोना विसर गया है, मरना खसम विसार, रब नूं विसार के खुआरी कीनी जीवन खुआर कर लिया, पर त्रिग जीवन नहीं रहना, जीवन तो है ही नहीं। इन्हें तो एक दिन संसार तू चले जाना है। प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदे को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत, चहु दिस के रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत निरह। इथों तक के घर की नार बहुत हित, जांस्यों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एक आया, प्रेत प्रेत कर भागी। ये बिद को व्यवहार बनियो है, जगत का यह व्यवहार है। जी जगत के नाल तू नेह पाया हुए, अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। हरि तो बिना कोई ना लिबन वाला नहीं है। गुरुदेव आखदे के मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। ये सारे पूर्वले जन्मां करके जिन्हां दे नाल संबंध है, भावें मां है, पिता है, भैन भरा ने, स्त्री है, बच्चे ने, ये पूर्व जन्म के मिले संजोगी। अंतः को ना सहाय, अखीर कोई सहाय नहीं है। इसलिए बाबा फरीद साहब आखते ने कि कित्थे तैंडे मापियां, जिन्हां मां बाप दे नाल बड़ा नेह सी तेरा, मोह दियां तंदां सन, ते साध संगत मां का करजा भी कोई नहीं दे सकता। भाई गुरदास जी कहते कि बच्चे नूं तकलीफ होए जां बच्ची भी, बच्चे तो भाव ये नहीं कि केवल बच्चा ही, बच्चा होए भावें बच्ची होए, तकलीफ होए, मां दियां आंदरां दुखण लग जांदियां ने। मां नूं पता लग जाता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तकलीफ दे विच है। एक संस्कृत के स्कॉलर ने गल लिखी सी, वो कहन लगा संसार दे विच तीन चीज़ां दा जां तीन देवां दा कदे ऋण नहीं उतारिया जा सकदा। मनुख दे उपर तीन तरह के ऋण ने, तीन तरह का करजा है, तीन तरह का भार है मनुख दे उपर। हुण वो किहड़ा तीन तरह का भार है, किहड़ा तीन तरह का ऋण है? कहणगे सब तो वड्डा जो ऋण है वो देव ऋण, परमात्मा का ऋण है। जिस परमात्मा ने ये मनुखी जन्म बख्शिश किया है कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। रब ने त्रुठ के ये मनुखी शरीर बख्शिश किया है, मनुखी देह ही बख्शिश की है। उस रब का करजा तो नहीं उतारिया जा सकता, पर रब की भगती करके मनुख अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, सफला कर सकते हैं। ये देव ऋण है। दूसरा ऋण है गुरु ऋण। हुण गुरु भावें अध्यात्मिक गुरु होए ते भावें दुनियावी गुरु जो टीचर पढ़ाते ने वो गुरु है। जिवें एक घुमियार मिट्टी नूं घड़ के सोहणे भांडियां दे विच तराश के तैयार कर दिंदा है तो मिट्टी सी,
मिट्टी च पानी मिलाया, पानी मिला के चंगी तरह गारा बना के ने सोहने भांडियां की शक्ल दे दी। जिस मिट्टी मिट्टी की कोई औकात नहीं सी, उस मिट्टी को तराश के सोहने भांडियां दे च बदल दिता कुम्हार ने। इसे तरह एक दुनियावी गुरु जिहड़ा है ना, वो भी जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, वो गुरु की शरण च आके वो जीवन का वो मर्तबा प्राप्त कर दिंदा है, जीवन की कामयाबी प्राप्त कर लैंदा है कि गुरु की कृपा के नाल भावें वो दुनियावी गुरु है जो असीं अध्यापक या टीचर शब्द वरतते हैं। ते अध्यात्मिक गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शरण विच सिख आ जाए। सिख तो भाव केवल ये नहीं कि ने केस रखे हुए ने, गुरु की सिक्ख्या नूं मनण वाला, जे गुरु की सिक्ख्या पर तुरन वाला आ जाता है तो गुरु के अंदर इतनी अजमत है, गुरु के अंदर इतनी कला है कि जिन मानस से देवते किए करत न लागी वार। जिहड़ा आम मनुखों तो देवतियां वर्गा जीवन कर दिंदा है, यह गुरु का ऋण है जो मनुख के उपर है। तीसरा ऋण है पितर ऋण। पितर कहा जाता है माता पिता नूं। वो गल वखरी है कि अज असी पितर केवल मरिया हुआ तक सीमित कर दिते ने। पितर तो भाव है माता पिता का ऋण, जिन्हां मां बाप ने बड़े जतनां दे नाल बच्चे नूं संसार दे अंदर पालिया, उहदी परवरिश कीती। आप भावें थोड़ा खादा पर बच्चियां दी हर एक लोड़ पूरी कीती। बच्चियां दी मां बाप नूं जो जीवन अंदर आप ना मिलिया होए, सोचते ने कि अपने बच्चियां नूं दे के इन्हां दा जीवन भविष्य उजला किया जाए। मां बाप की कोई देण दे नहीं सकता। इतिहास की गल रख के मैं समाप्ति वाल हुआ। टोडर मल एक दिन कह लगा अपनी मां नूं, मां तेरा बड़ा कर्जा है मेरे पर, मैं चाहता तेरा कर्जा उतार दें। टोडर मल की मां कह लगी, बेटा मां बाप का काहदा कर्जा, मां बाप ते जींदे ही बच्चियां करके ने, मां बाप का जीवन ही बच्चियां लई है, कोई गल नहीं। कह लगा नहीं मां मैं तेरा कर्जा उतारना है। मां सियाणी सी, कह लगी बेटा तू अज रात मेरे नाल सो जा, जिस बिस्तरे पर मैं सोना है मैं समझांगी तेरा कर्जा उतर गया। कह लगा बस नाल सोण दे नाल। हाँ ठीक है। अज रात मां जदों सोण लगी ते टोडर मालों कह लगी कि तू भी सरांदी आके सो जा। कुछ पल होया, कह लगी पानी चाहिए बेटा, घड़े दे चों पानी लैके आ। टोडर मल गया, घड़े दे चों पानी का लोटा भर के ले आया, 2 घुट पीते और सारा बिस्तरे पर डोल देता। जिस मंजे पर मां लेटी हुई है, कहने लगी बेटा एक पासे मंजा गिला हो गया, दूसरे पासे सो जा। बेटा दूसरे पासे सेन लगा। कुछ समय बाद कहने लगी पानी की प्यास होर लगी है। फिर पानी लैके आए, पानी का लोटा 2 घुट पीते, फिर दूसरे पासे डोलिया। कुछ समय बाद तीसरा लोटा मंगवाया, पानी का लोटा तीसरे पासे डोलिया। चौथी बार फिर मां कहने लगी बेटा पानी लैके आ। टोडर मल नूं खिज आ गई, आखन लगा पानी तू पीना नहीं, सारे का सारा बिस्तरा तू गिला कर दिता, मैं सोवांगा किथे। मां उस वेले कहन लगी बेटा ये तो सुच्चा पानी है, इतने फिर मंजे पर डुल रहा। जो बचपन दे तू मल मूत्र दे नाल ये मंजा सारा गंदा कर देंदा सी। सर्दियां सियालां दियां रातां ठंडी थां दे उपर उस तेरे मल मूत्र दे उपर मैं आप लेट के तेनू अपनी छाती पर रखिया कि नू ठंड न लग जाए। तू मां का कर्जा उतारेगा? मां बाप का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, ना ही कोई उतार सकिया है और ना ही कोई उतार सकेगा। अज बाबा फरीद साहब आखते कि किथे टंडे मापिया जिन्हां मां बाप ने तेरी परवरिश की है, जिन्हां दे नाल तेरा बड़ा नेह सी, वो भी संसार तो रुखसत करके चले गए। वो भी तै पासों वो लद गए, तू अजे ना पतीने होए, तेनों अजे भी यकीन नहीं कि तू भी नहीं रहना, फिर रहन वाला कौन है? धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखदे ने कि नाम रहियो साधु रहियो। जे रहन वाला है तो एक परमेश्वर का नाम रहन वाला है, और परमेश्वर के नाम तो इलावा साधु भाव के जिन्हों ने प्रभु की बंदगी की है, मालिक का नाम जपिया है,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਊੜ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਨ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ।